the topic we will cover, that is ether. Okay. Till now we have covered alcohols and phenols. So this is ether. Preparation of ethers. Preparation of ethers. Okay. IUPAC naming, structure we already studied in previous classes. So now we will come to the point, that is preparation of ethers. You will remember that when we study properties of alcohol, in that case at different conditions, alcohol in presence of dehydrating agent gives two different type of product at different condition. If we provide 443 Kelvin and concentrated sulfuric acid, so we will get ethene. But when we provide 413 Kelvin and concentrated sulfuric acid, so at that time we will get ether. So this is the preparation method of ether. The mechanism of this equation is, this is SN2 phenomena. Okay. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर है, ये कैसे परफॉर्म होगी? सो मैकेनिज्म हम इसकी देखते हैं. मैकेनिज्म, फर्स्ट वी टेक a molecule of alcohol and in presence of acid, mineral acid, we used concentrated sulfuric acid in small amount. So H plus ion or proton attack to this oxygen atom, because this is electron rich and this is electron deficient. It will form intermediate ion, cation. So oxygen is electronegative and it has positive charge in this situation, so it is highly unstable. This molecule searching for electron rich species. So again, second molecule of alcohol is also present in this reaction, and here you have clearly seen that SN2 phenomena will be occur. यहाँ से H2O का एलिमिनेशन होता है और यहाँ से अल्कोहल का सेकेंड मॉलिक्यूल अटैक करता है. We have this species with water molecule. One water molecule will be relieved from here and simultaneously alcohol molecule attached to this carbon atom. So this is SN2 mechanism. Again, H plus ion will be relieved by this molecule to become stable. Plus H plus ion. This H plus ion is catalytic product. Catalyst से हमने लिया था, अब कैटालिस्ट का वापस दे दिया है. Okay, so this is the process of elimination of or dehydration of alcohol molecule to produce ether. Okay. The condition is must, because when we provide high temperature, so we will get ethene. But in this case, we provide less temperature at that condition compared to this that condition, so we will get ether. Next preparation method is Williamson synthesis. Williamson synthesis. Okay, with SOM. Williamson synthesis. The basic concept
product of Williamson synthesis is Rx plus NaO R dash RO R dash plus NaX. This is the basic equation of Williamson synthesis. Example: CH3Cl plus NaO C2H5, or you can take any alkyl group for this reaction. So CH3O C2H5 plus NaCl. क्लियर है? एक अल्काइल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन होके और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा. हम सोडियम अल्कोक्साइड की जगह हम पोटेशियम अल्कोक्साइड भी ले सकते हैं, बट नेम रिएक्शंस पे हम रिएजेंट चेंज नहीं करते हैं. नेम रिएक्शन मतलब विलियमसन ने सोडियम का अल्कोक्साइड लेके ही रिएक्शन किए, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें तो वही लेना पड़ेगा. ठीक है? सो ये विलियमसन सिंथेसिस. अब यहाँ एक हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है. क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ये देख लेते हैं. ये तो कंफर्म है कि आप एक हैलाइड और एक अल्कोक्साइड आयन को एक अल्काइल और एक अल्कोक्साइड आयन को कंबाइन करा रहे हो. तो यहाँ एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि आप कभी भी टर्शरी हेलो कंपाउंड नहीं लेंगे. ठीक है? कभी भी टर्शरी हेलो, इस विलियमसन सिंथेसिस के लिए हेलो अल्काइल ग्रुप नहीं लेंगे, टर्शरी हेलो अल्काइल कंपाउंड नहीं लेंगे. यदि आपने लिया, सपोज विद एन एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू दैट कंसेप्ट कि व्हाई वी शुड नॉट टेक टर्शरी अल्काइल हैलाइड फॉर Williamson synthesis or for the preparation of ether. Plus NaOCH3 हमने ये लिया. ठीक है? क्या प्रोडक्ट बन सकता है? बहुत ध्यान से देखिए. It will dissociated in this form. Okay? Tertiary carbocation will be produced and Cl negative ion is formed. Here यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई भी ऑप्शन नहीं है. ये तो यही से ही डिसोशिएट होना है. यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे डिसोसिएशन के. या तो ये कार्बन के साथ में भी निकल सकता था, बट टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो ये कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा. जैसे ही टर्शरी कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो रहा है, we can write open structure of this methyl group like this. Okay? हमने लिखा ये टर्शरी कार्बोकैटायन है. इस टर्शरी कार्बोकैटायन पर प्रेशर है चार्ज को डिस्पर्स करने का, डिसॉल्व करने का. वो क्या करेगा? यहां से शेयर्ड पेयर को लेगा. हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने देखा है. ठीक? सो CH2C CH3 CH3 plus H plus आयन. ये प्रोडक्ट बनेगा. इसका मतलब ये हुआ जब भी कभी आप टर्शरी हेलो कंपाउंड ले रहे हो तो वो आपको इथिन देगा, वो ईथर नहीं देगा. क्लियर है? क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वहां टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है और वो रीअरेंज होके एल्कीन देता है. रीअरेंज तो नहीं बोलेंगे, वो प्रोटॉन को रिलीज करेगा और स्टेबिलिटी ले लेगा. किस फॉर्म में? एल्कीन के फॉर्म में. क्लियर? तो यदि हमें ये वाला ईथर बनाना था, ये ईथर बनाना था, तो आप इस रास्ते नहीं जाओगे. आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि हम ये ले लें, ये ले लेते हैं तो ये इससे कंबाइन हो जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा. बिल्कुल भी नहीं. इससे आप तो एल्कीन पाओगे.
Okay, so what will we take for this ether? To prepare this ether, हमें ये ether बनाना है, तो definitely हमारे पास option अब दूसरा है. हम इसे ऐसे ना जोड़ के हम इसे इस तरह से लेके आएंगे. कैसे? We have to take alkoxide, tertiary alkoxide, ठीक है, प्लस आप ये लेंगे, because in this case this becomes negatively charged and this is positive, this negative and this becomes positive. Okay, so NaCl combine to form side product. In this case we have an anion like this. This anion is highly reactive. क्यों reactive है? Because oxygen having or this carbon having 3 electron donating group. इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be higher at oxygen atom. मतलब इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी. ठीक है, वैसे भी सिंपल अल्कोक्साइड और सब्स्टिट्यूटेड अल्कोक्साइड में सब्स्टिट्यूटेड अल्कोक्साइड ज्यादा अल्कलाइन होता है, ज्यादा बेसिक होता है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रखता है. ओके, अफेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, अफेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा रखता है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है. प्लस ये CH3 1 प्लस and we will get the desired ether which we want. हमें जो चाहिए था वो ether मिल गया. So never take tertiary halide. If you take tertiary halide, so you will get alkene, not ether. So suppose someone has asked for the preparation of this type of ether which has one tertiary carbon. So you must take tertiary alkoxide along with primary हैलाइड, और प्राइमरी और सेकेंडरी प्रेफर आप यहाँ पर नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे टर्शरी हैलाइड लेना. दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस. वी कैन प्रिपेयर एरोमेटिक ईथर आल्सो विद द हेल्प ऑफ विलियमसन सिंथेसिस. ओके, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर दिस ईथर, दिस एरोमेटिक ईथर. सो फर्स्ट वी विल टेक sodium phenoxide. Sodium phenoxide is ONA. How it will prepare? When we react phenol with sodium, simple. So we will get sodium phenoxide. Sodium phenoxide plus chloromethane. So it will produce OCH3 ether plus NaCl. क्लियर? इस केस में आप भी बहुत प्रिकॉशन लेंगे. यू नेवर यूज क्लोरोबेंजीन प्लस NaOCH3. आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे. रीजन, it is easily decomposed as positive and negative ion, but due to the plus R effect, chlorobenzene having partial double bond character and double bond is much more shorter या much more stronger than the single bond. So ये डबल बॉन्ड होने की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो जब ये टूटेगा ही नहीं तो आप इससे ईथर कैसे बनाएंगे? तो नॉर्मली आप ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट्स नहीं लेंगे बनाने के लिए. तो प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन वी प्रिपेयर दिस aromatic ether. So this is the preparation of aromatic ether also. Next, physical properties of ether. Physical properties means melting point, boiling point. So ether having this type of structure. In this, sp3 oxygen is present and 2 of the sp3 orbitals having lone pair. So by this way
they repel each other and the bond angle is reduces. Okay, so dipole moment, it is dipolar molecule, means all the ethers are dipolar, and intermolecular force of attraction present in ethers is dipole-dipole interaction. It is stronger than the van der Waals force of attraction and weaker than the hydrogen bonding. So they have high melting point as compared to hydrocarbon and less to alcohols, clear, or acids. So this is the melting point and boiling point of ethers. And next is solubility. So they are polar in nature, so they dissolve in water. पोलर है, सो वाटर के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बनाएंगे. Partial plus, partial minus, this way they form hydrogen bond, so they are miscible in water in all proportion. हर proportion में water में mix हो जाते हैं. ठीक है, so ये miscible in water. As we increase the alkyl part of ether, this is the hydrophobic part. So solubility gradually decreases. जैसे जैसे आप R part बढ़ाते जाओगे, बल्कि होता जाएगा, तो solubility of ethers in water is reduces simultaneously. Okay, gradually वो क्या होगी, कम होती जाएगी उनकी solubility. Next is chemical properties. Chemical properties. Chemical properties of ether. First, cleavage of CO bond. Cleavage of CO bond. CO bond कैसे cleavage होगा इसमें? क्योंकि इनके पास क्या है, कार्बन है दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ इनके पास CO बॉन्ड ही है. सो डिसोसिएशन हमें किसका पढ़ना है, CO बॉन्ड का. तो CO बॉन्ड कैसे डिसोशिएट होगा हम ये देखते हैं. रिएक्शन विद HX, हम इसकी HX से रिएक्शन कराते हैं. ROR plus HX. Suppose it will dissociated in this manner, so this is also dissociated in this manner. So H goes to here and X will attracted towards the R plus and a carbocation. So we will get RX plus HOR means alcohol. ठीक है, हमें अल्कोहल मिलेगा. नेक्स्ट इसमें if you provide excess of HX, so again if you provide HX in excess, यदि आपने एक्सेस में HX प्रोवाइड किया, so alcohol, this was the product of this reaction. Alcohol again react with HX and form RX plus H2. This reaction you studied in the preparation of RX from alcohols. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो हमें ये मिल रहा है. तो अल्टीमेटली हम नट शेल में रिएक्शन क्या लिखेंगे, ROR plus 2HX, we will get 2RX plus 2H plus H2 plus H2. ठीक है, हमें ये एक्चुअल रिएक्शन मिलेगी. ठीक है, बाकी ये होती 2 स्टेप में है. अगेन precaution should be taken when we mix HX and ROR, ether and HX. So what precaution will be taken by us? That is, you never take, again one important point will come, that is, if you will take this ether, okay, ये ether है,
when it react with suppose HI, ठीक है, हेलो एल्केन से रिएक्शन कराते हैं, सॉरी हेलो एल्केन नहीं, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। हमारे पास बेसिक रिएक्शन क्या थी, ROR प्लस HH, तो हमें मिल रहा था RX प्लस HOR, ठीक है। सी फर्स्ट H plus ion attached to this oxygen atom, O H C, ठीक है, प्लस, okay, oxygen having plus, you will get this species plus I negative ion. After that we have this species along with I negative ion. Okay, so this step is SN2. This step goes through SN2 mechanism. I attach to the carbon atom which is, in case of SN2, which carbon having less crowdness or uncrowded, so it will attacked by nucleophile. In this case, I negative iodide ion attached to this carbon atom, and this is retrieved from the reaction. So we have I इससे जुड़ेगा और हमारे पास ये अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। फिर से इस टर्शरी अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर पे जब हम HI की रिएक्शन कराते हैं, सो सबसे पहले तो प्रोटॉन, ये ईथर प्रोटोनेटेड होगा। प्रोटोनेटेड होने के बाद अब ये तो अनस्टेबल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, हमारे पास I नेगेटिव भी है। उसके बाद अब SN2 मैकेनिज्म होगी। SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ये सर्च करता है कि क्राउडनेस कहाँ कम है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस कार्बन पे जाए या इस कार्बन पे जाए, ठीक है। सो दिस कार्बन इज हाईली क्राउडेड, सो आयोडाइड प्रेफर टू कम दिस कार्बन। सो आयोडाइड का यहाँ आना होता है और इसका यहाँ से रिलीव होना होता है, मतलब ये डिटैच हो जाएगा। SN2 में यही होता है ना, पहले एक पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बनता है, फिर जो आया था वो जुड़ जाएगा और जो टूटने वाला था वो अलग हो जाएगा पूरे से, तो ये बनेगा हमारे पास अल्कोहल। सो हमारे पास CH3I मिलेगा, ठीक है, ये अल्कोहल टर्शरी बनेगा। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें कभी भी आप टर्शरी आयोडाइड नहीं बनाएंगे। मैं फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी कभी हमें ऐसा ईथर फॉर्म करना है जिसमें टर्शरी अल्काइल ग्रुप होता है, ऐसा ईथर यदि फॉर्म करना है, तो आप विलियमसन सिंथेसिस यदि परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें कभी भी टर्शरी हैलाइड नहीं लोगे, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल के लिए आप टर्शरी हैलाइड नहीं लोगे। सेकंड बात जो बहुत ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप का ईथर HX से रिएक्शन करेगा या डिसोशिएट हो रहा है या रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, तो हमेशा आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक है। यदि आपने ये तोड़ा, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि I इस पे अटैक करे, तो फिर क्या बनेगा, आपको एल्कीन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन प्रेफर टू फॉर्म एल्कीन। तो आप यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि टर्शरी हैलाइड को यहाँ से, सॉरी टर्शरी अल्काइल ग्रुप को यहाँ से नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल उसी तरफ से अटैक करता है या वही साइट प्रेफर करता है जो कम क्राउडेड होती है, तो डेफिनेटली दिस बॉन्ड विल बी क्लीव्ड इन दिस केस, यहाँ से ही टूटेगा। क्लियर है, ये बहुत ध्यान से दोनों बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज
only for aromatic ethers or ethers which has at least one benzene ring. Clear? एरोमेटिक ईथर में ही ये हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे. OR अल्काइल ग्रुप है, हम इससे लेके रिएक्शन कराते हैं. ओके, सो ये क्या है? एरोमेटिक ईथर. सो एरोमेटिक ईथर में हमेशा आप देखेंगे इसमें रेजोनेंस मिलेगा. रेजोनेंस मिलेगा इसका मतलब ये प्लस आर इफेक्ट देगा, है ना. OR ग्रुप इज शोइंग प्लस आर इफेक्ट. सो ये प्लस आर इफेक्ट देगा मीन्स ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से अटैच. ये ग्रुप कौन सा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. सो सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? ऑर्थो पैरा के जैसा ही होगा. ओके, सो फर्स्ट हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन कैसा होगा इसमें? सपोज अपन एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में यदि ब्रोमीन गैस पास करते हैं, CH3COH, in presence of acetic acid we will provide bromine to this ether. So we have ऑर्थो पोजीशन पे आपका Br जुड़ेगा प्लस पैरा इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमीन, बट दिस इज मेजर प्रोडक्ट. मेजर, दिस इज माइनर. Due to ortho effect, this product is prepared in less amount, or this will be the major product. Okay, so this is halogenation. Second, nitration. Okay, so for nitration we have to take nitrating mixture. Nitrating mixture is concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. This is called nitrating mixture. Okay, so in nitrating mixture, ether react and form ortho and para substituted nitro compound plus ortho and para substituted nitro compounds. Same, this is major product, and this will be the minor product. Okay? So nitrating mixture जो है वो नाइट्रेशन कराएगा. नाइट्रेशन ऑर्थो और पैरा पे होगा. क्यों? क्योंकि ये तो प्लस आर इफेक्ट है, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन विल बी अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. थर्ड, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन. फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन. थर्ड, Friedel-Crafts acylation and alkylation. Friedel-Crafts acylation and alkylation. So, though OR is ortho-para-directing group, so it will promote coming species to be attack on ortho and para position. Plus, first acylation. Acylation, CH3COCl. Suppose we will take this, और acylation के लिए हम CH3CO whole twice O, ये acid anhydride भी ले सकते हैं. First, this bond is break. Sorry. This is electrophilic substitution reaction. Okay, so and ortho COCH3, okay, COCH3 ये प्लस ये माइनस में टूटेगा. ऑक्सीजन पे आप प्लस चार्ज नहीं लगाएंगे, कार्बन पे ही आएगा. क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? CH3COCl, so it will dissociated as plus and minus. So carbon having plus charge, and due to plus R effect, ortho and para position becomes electron rich center. So
this carbon is attached to the ortho and para position. OR plus again we have the mixture of products COCH3. This is major and this is minor. Okay, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा. क्यों? सिंपल, ऑर्थो पर प्रोडक्शन कम होगा, अटैक कम होगा, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस है या क्राउडनेस है. नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी हम बोलते हैं किसी भी चैप्टर में या किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यदि होना है तो फ्रीडल क्राफ्ट ने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेके ही रिएक्शन कराई है. सो हमेशा आप ध्यान रखेंगे यही लेंगे. इसकी जगह दूसरे भी हेलोजन कैरियर हैं, बट फ्रीडल क्राफ्ट ने इसे लेके वर्क किया था, इसलिए हमें एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड तो लेना ही है. क्लियर? फिर है अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. सेम, in presence of anhydrous aluminum chloride, aromatic ether react with alkyl group लेके जाना, अल्काइलेशन होना है. ओके, सो फिर वही बात, ये R प्लस के फॉर्म में डिसोशिएट होगा एंड दिस विल अटैच टू CH3 plus ortho and para, both the product we get. Okay, this is alkylation. आप एक बात बहुत अच्छी से ध्यान रखेंगे, जब मैंने पूरे बेसिक्स के वीडियो आपको दिए थे, 2-3 वीडियो, उनमें इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबकी डिटेल में मैकेनिज्म दी हुई है. सो वो इसीलिए आपको पहले बता दिया है कि हमें बार बार वो मैकेनिज्म ना लिखना पड़े. ओके, सो एक बार आप कंसेप्ट को रिवाइज करें और फिर रिएक्शंस भी ट्राई करें.